हाँ, तो ये these four conditions are present in the stop and wait ARQ system. So now we will see what are the drawbacks of the stop and wait protocol. It is very much inefficient. Now, in which regard it is inefficient? At any moment of time, process only one frame. So what? Here we are processing one frame only. At a time, one frame is processed. So that means what? Sender will send some frame, receiver will receive that. After receiving that frame, receiver will then send the acknowledgement to the sender. So if then acknowledgement is received, after receiving the acknowledgement, what? The sender will send the next transmission. Sender will send the next frame if it is received the positive acknowledgement. But if it is receives the negative acknowledgement, then same frame will be retransmitted. So only at a moment of time, one frame should be processed. So this is why this is the very much inefficient. क्योंकि हम लोग क्या है एक ही फ्रेम को at a time प्रोसेस कर सकते हैं and waiting time is much more. तो waiting time तो है कि एक फ्रेम सेंड करेंगे उसके बाद उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मेरा रिसीव्ड होगा. तो ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग है. This is also very much time consuming. That is why we can say that the waiting time is much more. This is the drawback of the stop and wait protocol. So for this, the next protocol that is used is the go back N ARQ. The next protocol that is used, go back N ARQ. This is another type of automatic review request, automatic repeat request. So this is also use the sliding window protocol. This is also use the sliding window protocol. And in this what? Several frames are sent. Several frames are sent before receiving the acknowledgement. उधर क्या थे कि हम एक फ्रेम को सेंड किए, उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए, देन हम लोग नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करेंगे. यही था उसका प्रोसेस. बट हियर व्हाट इज इन द गो बैक इन ARQ? Several frames are sent. Means in number of frames we can send in number of frames, and after receiving this, acknowledgement will one by one send to the sender. So here important is that it will be n greater than equal to 0. That means in the sender window size, it will be n, but receiver window size, in case of receiver window size, it is 1. In the case of receiver window size, it will be 1. तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका मीन्स क्या है कि in this method, if one frame is sent, if one frame is lost or damaged, then all frames are sent since the last frame acknowledgement are retransmitted. In this, if one frame is lost or damaged, कि एक फ्रेम अगर मेरा लॉस्ट और डैमेज्ड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल फ्रेम सेंट सिंस द लास्ट फ्रेम एक्नॉलेजमेंट आर रीट्रांसमिटेड. तो इसका मीन्स क्या है कि हम लोग अगर इसको देखें एग्जांपल के थ्रू, तो देखो ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द गो बैक इन ARQ है. ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द गो बैक इन ARQ है. और इसमें जो कंडीशन है अभी देखो कि एक्नॉलेजमेंट मेरा लॉस्ट हो गया. तो इसका भी क्या है, इसका भी प्रोसेस सेंडर और रिसीवर होगा, और उसमें क्या होगा,
सेंडर साइड में एज ए सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रेजेंट होगा, सेम सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम क्या होगा रिसीवर साइड में भी, सेम सीक्वेंस नंबर में, सीक्वेंस नंबर का चेंज नहीं हो सकते हैं, सेम सीक्वेंस नंबर फ्रेम शुड बी प्रेजेंट ऑन द रिसीवर साइड ऑल्सो। तो इसमें अभी क्या देखें कि हम लोग एट ए टाइम क्या है सेवरल फ्रेम्स कैन बी सेंड। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर फर्स्ट फ्रेम 0 को सेंड कर दिया, नेक्स्ट टाइम क्या है फ्रेम 1 को सेंड कर दिए, देन सेकेंड थर्ड टाइम में क्या है फ्रेम 2 को सेंड कर दिए, फिर फ्रेम 3 का सेंड कर दिए, फिर फ्रेम 4 का सेंड कर दिए। तो ये क्या है, उसमें क्या था कि हम लोग एक एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के बाद क्या होगा नेक्स्ट फ्रेम को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। बट इधर क्या है सेंडर क्या होगा एट ए टाइम फ्रेम को सेंड करते जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ कि या नहीं वो उतना ये नहीं रहेगा, वो क्या होगा एक के बाद एक फ्रेम को सेंड करते जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेम 0 को सेंड किए, नेक्स्ट फ्रेम 1 को सेंड किए, देन थर्ड फ्रेम 2 को सेंड किए, फिर फोर्थ फ्रेम 3 को सेंड किए, देन 5 में फ्रेम 4 को भी सेंड कर दिए। तो अभी जितना है कि मेरा फ्रेम्स जो है फ्रेम सेंड करना हो गया, तो अभी मेरा देखो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना स्टार्ट किया। अभी एक्नॉलेजमेंट सेंडर क्या है, सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना स्टार्ट किए। तो फर्स्ट उसका क्या है फ्रेम 0 को, फ्रेम 0 का एक्नॉलेजमेंट उसका पास रिसीव्ड हुआ, फ्रेम 0 जो है उसका एक्नॉलेजमेंट वो रिसीव किए, देन फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट भी वो रिसीव किए, फ्रेम 1 जो है उसका एक्नॉलेजमेंट भी क्या है सेंडर रिसीव किए। सो दैट मींस सेंडर विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट इट इज व्हाई सेंडर इज नाउ रिसीविंग व्हाट positive acknowledgement. That means sender will understand that frame number 0 and frame number 1 are correctly received by the receiver. Then acknowledgement of the second packet, acknowledgement of the what, acknowledgement of the second packet, but it get lost, it get lost in the midway. ठीक है, तो ये क्या है एक्नॉलेजमेंट जो है एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। बट जो नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट है 3 जो है 3 का एक्नॉलेजमेंट मिला, फ्रेम 3 का एक्नॉलेजमेंट भी मिला, फ्रेम 4 का भी एक्नॉलेजमेंट मिला, सिर्फ ओनली एक्नॉलेजमेंट 2 जो है एक्नॉलेजमेंट 2 को क्या है एक्नॉलेजमेंट 2 सेंडर को पास नहीं मिला। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर हर फ्रेम के साथ एक टाइम पीरियड अटैच्ड होता है, हर फ्रेम के साथ एक टाइम पीरियड अटैच्ड होता है। तो वो टाइम पीरियड के अंदर क्या करेगा सेंडर देखेगा कि उसके पास उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है या नहीं। अब जब भी देखा कि उसका एक्नॉलेजमेंट 2, जब फ्रेम 2 को सेंड किया तब वो क्या है एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का भी उसका एक टाइम है, एक टाइमर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा वो काउंट करेगा कि इस टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट 2 का हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास उसका एक्नॉलेजमेंट आया कि या नहीं। बट वो वेट ही करते रहा, वेट करते करते ऐसे हो गया कि उसका एक्नॉलेजमेंट 2 नहीं मिला, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट 2 मिडवे में क्या होगा ट्रांसमिशन का मिडवे में और लॉस्ट हो गया। तो एट ए टाइम सेंडर क्या करेगा, सेंडर फिर से रीट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। अभी रीट्रांसमिशन कहां से स्टार्ट करेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नंबर 2, क्योंकि फ्रेम नंबर 2 का क्या है उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था। तो वो क्या करेगा फिर फ्रेम नंबर 2 से उसका फ्रेम, then retransmissions will be started from frame number 2 again, because the acknowledgement of the frame number 2 is not received. That means the retransmissions of frame will be started again, and in which position it will be started, from frame number 2. From frame number 2 the retransmission is started. So what sender will do, sender will again retransmit the frame 2, then frame 3 एंड फ्रेम 4। बट अब देखो इसमें क्या है कि ऑलरेडी सेंडर जो है, सेंडर तो और रिसीवर जो है, रिसीवर के पास तो फ्रेम 3 और फ्रेम 4 चला गया था, बट वो क्या किए वो फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, इसीलिए वो क्या करे किया वो फिर से फ्रेम 2 से रिट्रांसमिट किया। बट फ्रेम 3 और फ्रेम 4 तो ऑलरेडी पहुंचा गया है रिसीवर साइड में। तब रिसीवर साइड क्या करेगा, रिसीवर साइड वो फ्रेम 3 और फ्रेम 4 को डिस्कट कर देगा, क्योंकि उसका फिर से रिट्रांसमिशन हो रहा।
उसका फिर से क्या है रिट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए क्या करेगा वो फ्रेम 3 और फ्रेम 4 जो रिसीवर साइड में ऑलरेडी पहुंचा गया था वो क्या हुआ, वो डिस्कट कर देगा, उस फ्रेम को डिस्कट कर देगा, क्योंकि फिर से क्या है फ्रेम 2 से रिट्रांसमिशन हो रहा है। तो यही क्या है कि गो बैक इन ARQ। अभी ये हम लोग गो बैक क्यों बोलते हैं, देखो ऑलरेडी फ्रेम 4 तक मेरा सेंड हो गया था, सेंडर फ्रेम 4 तक रिसीवर को सेंड कर गया, बट फ्रॉम हम लोग का जो सेकंड सेकंड जो है सेकंड फ्रेम उससे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला के कारण, नहीं मिलने के कारण वो क्या किए फिर से उसका फ्रॉम 2 से रिट्रांसमिशन किया। दैट मींस आफ्टर receiving 4, after receiving 4 it will again go back to what, it will again go back to from 2 second frame. So from second frame the retransmission is again goes on. This is why it is called go back. This is why it is called go back in ARQ. और इसमें क्या है कि ट्रांसमिशन जब होगा इसमें हम लोग का जो ट्रांसमिशन होगा इट कैन सेंड मैक्सिमम अप टू द लिमिट ऑफ द स्लाइडिंग विंडो। इस स्लाइडिंग विंडो का जो साइज है, हम लोग का स्लाइडिंग विंडो का जो साइज है, स्लाइडिंग विंडो का साइज के तैयार हम लोग का उसमें जितना फ्रेम्स प्रेजेंट हो सकते हैं उतना फ्रेम्स को एट ए टाइम हम लोग का ये सेंडर सेंड कर सकते हैं। अगर स्लाइडिंग विंडो का साइज 4 है तो 4 फ्रेम को एट ए टाइम वो सेंड कर सकते हैं। सेम एज दैट अगर स्लाइडिंग विंडो का साइज 2 है तो एट ए टाइम क्या है कि 2 फ्रेम्स को वो एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं। तो यही क्या है हम लोग का नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द गो बैक इन ARQ इफ द एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट। अगर एक्नॉलेजमेंट मेरा लॉस्ट हो गया तो ऐसे ही हम लोग का होता है कि विथ ईच फ्रेम क्या है हम लोगों का एक टाइमर अटैच्ड होता है। ईच फ्रेम अ टाइमर इज अटैच्ड एंड द पर्टिकुलर टाइम इट वेट्स देन डिसाइड from where the retransmission should be done, from where the retransmission should be done. So इधर क्या होगा कि acknowledgement 2 रिसीव नहीं हुआ, that means frame 2 का जो है उसका पास भी एक टाइमर प्रेजेंट है, उस टाइम के अंदर वो क्या हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। जब भी एक्नॉलेजमेंट वो रिसीव नहीं किए तभी समझ जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ है। तो इसका मीन्स क्या है, फिर से रिट्रांसमिशन करना होगा, फिर से रिट्रांसमिशन करना होगा और वो क्या है एक्नॉलेजमेंट 2 से क्या करेगा सेंडर फिर से रिट्रांसमिशन करेगा। बट ऑलरेडी देखो हम लोग का फ्रेम 3 और फ्रेम 4 जो है वो रिसीवर साइड में पहुंचा गया था, बट रिट्रांसमिशन के कारण क्या है फिर से मेरा फ्रेम 2 से स्टार्ट होगा रिट्रांसमिशन, दैट फ्रेम 2 विल बी सेंड, देन अगेन फ्रेम 3 विल बी सेंड, देन अगेन फ्रेम 4 विल बी सेंड। तो अभी क्या है कि फ्रेम 3 और फ्रेम 4 जो रिसीवर के साइड में पहुंचा गया था पहले उसको क्या करेगा डिस्कट कर देगा, क्योंकि उसका रिट्रांसमिशन फिर से हो रहा है। तो इसीलिए क्या है उसको हम लोग डिस्कट कर देंगे और ऐसे जब रिट्रांसमिशन हो रहा है उस टाइम हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीवर अगेन रिसीव दैट फ्रेम। ओके it is clear to everyone? Yes, sir. गोल्डन, गोल्डन आफरीन तुम लोग का, उज्जवल, Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है, ये हम लोग का नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ अ गो बैक इन ARQ है। बट इधर क्या है कि हम देखें कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया उस टाइम में, उस टाइम का प्रोसेस। बट व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इफ द डेटा फ्रेम इज लॉस्ट और डैमेज्ड। डेटा फ्रेम अगर लॉस्ट हो गया और डैमेज्ड हो गया, अब देखो इसमें क्या है जब भी कोई क्वेश्चन हम लोगों को देगा तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज जो है कुछ याद रखने का नहीं है, सिर्फ इस डायग्राम को तुम लोग करना और डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। ये जो प्रोसेस है ये लिखने का प्रोसेस सबसे इजी है। फर्स्ट
always try to make the diagram. Always try to make the diagram, and then after making the diagram, explain that diagram. Whatever the operations that is performing on that diagram, explain that diagram. तो ये क्या होगा, इससे तुम लोगों का भी इजी होगा. तो इसीलिए क्या है, रिमाइंड करने के सबसे इजी प्रोसेस है कि डायग्राम को देखो, फर्स्ट डायग्राम को बनाओ. डायग्राम अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक द डायग्राम एंड एक्सप्लेन दैट डायग्राम. ओके, इन एग्जाम follow that process. So the next is, if the data frame that we are using that is lost or damaged, the data frame will be lost or damaged. So that means what, there will be a side in sender and the receiver. So अभी देखो कि फ्रेम 0 जो है सेंडर सेंड्स किए, so sender sends frame 0, then frame 1, then frame 2, but this frame 2 get lost in the midway. This frame 2 what, this frame 2 get lost, and again after that the frame 3 is going on, frame 3 goes on to the receiver side. but इसके बीच में देखो frame 2 जो था, frame 2 क्या है, रिसीवर साइड में पहुंचा नहीं, वो मिड वे में क्या हुआ, लॉस्ट हो गया. तो अभी क्या है, फ्रेम 0 रिसीवर साइड में गया, तो इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा. सो फ्रेम 0's acknowledgement will be received by the sender. Frame 1's acknowledgement will also be received by the sender. But अभी क्या है कि फ्रेम 2 जो था, फ्रेम 2 का क्या है, फ्रेम 2 का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि रिसीवर क्या एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसके पास तो पहुंचा ही नहीं वो फ्रेम, वो तो मिड वे में लॉस्ट हो गया. तो रिसीवर क्या एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा. तो एट ए टाइम क्या होगा, सेंडर साइड पे क्या होगा, टाइम पीरियड तक वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आने तक. अभी क्या हुआ, उसके पास एक्नॉलेजमेंट जब नहीं आया तो वो क्या करेगा, फिर से उस पोजीशन से रिट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा. तो इसका मींस क्या है कि फ्रेम 2 जो था, फ्रेम 2 वो मिडवे में लॉस्ट हो गया. बट देखो फ्रेम 3 जो था वो क्या था, वो ऑलरेडी पहुंचा गया था रिसीवर साइड में. बट हम लोग का क्या है कि फ्रेम 2 जो था, फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला. इससे सेंडर क्या है, सेंडर समझे कि इसका ठीक से पहुंचा नहीं रिसीवर के साइड में. सो दैट मींस फ्रॉम वेयर द रीट्रांसमिशन शुड बी ऑकर फ्रॉम अगेन फ्रेम 2. तो फ्रेम 2 से क्या होगा, अगेन रीट्रांसमिशन होगा. देखो फ्रेम 2 फर्स्ट सेंड, देन अगेन frame 3 will be sent. But you see frame 3 is already, previously the frame 3 is already sent to the from sender to receiver. But तब क्या करना होगा, मुझे उस फ्रेम 3 को रिसीवर साइड में डिस्कार्ड कर देना है, फ्रेम 3 को डिस्कार्डेड कर देना है, क्योंकि फिर से क्या है, फ्रेम 2 से रीट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला. तो इसीलिए क्या है, सेंडर फिर से फ्रेम 2 से retransmissions करेगा. So again frame 2 and frame 3 will be sent. तो ये क्या है कि अगर हम लोग का फ्रेम जो है वो डेटा फ्रेम मिड वे में लॉस्ट हो गया ट्रांसमिशंस के टाइम में, तब सेंडर ये काम करेगा. बट इफ इट इज डैमेज्ड, अगर उसको डैमेज्ड मिला तो वो क्या करेगा, देखो फ्रेम 0 उसका एक्नॉलेजमेंट आया, फ्रेम 2 1 जो था उसका मानो कि फ्रेम 1 जो है वो रिसीवर साइड में पहुंचा. बट क्या है, रिसीवर साइड में उसके पास पहुंचने के बाद वो क्या हुआ, उसके पास नॉर्मल ये आया कि जो फ्रेम जो रिसीवर साइड में आया वो क्या है, वो डैमेज्ड हो गया. रिसीवर साइड में जो फ्रेम्स आए वो फ्रेम्स क्या है, डैमेज्ड मिला. तो डैमेज मिलने के बाद क्या होगा, डैमेज मिलने के बाद देखो वो डैमेज फ्रेम के लिए रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. सेंडर को क्या है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. सो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड फॉर दैट्स व्हाई देन व्हाट, आफ्टर रिसीविंग द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, सेंडर विल व्हाट,
sender will understand that the frame which is received by the receiver is damaged. So that means one by one frame for the one by one our frames from frame one again means frame one में मुझे डैमेज फ्रेम मिला था, तो डैमेज फ्रेम मिलने के बाद क्या है, वो फिर से क्या है फ्रेम वन से रीट्रांसमिशन करेगा, फिर से फ्रेम वन से रीट्रांसमिशन स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट फ्रेम वन विल बी सेंड, then again frame 2 will be sent, then again frame 3 will be sent. तो इसीलिए क्या है फ्रेम 1 के बाद जो फ्रेम उसके पास पहुंचा गया, करेक्टली भी पहुंचा गया, उसको क्या करना होगा, डिस्कट कर देना होगा, क्योंकि फिर से क्या है रीट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है. तो इसीलिए फिर से क्या होगा, रीट्रांसमिशन हम करेंगे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. दिस इज द प्रोसेस फॉर द data frame lost. If lost, then there will be what the process we have seen, and for damaged this is the process. Okay, is there any question? अब बोलो कौन सा जगह में, कई जगह में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं बोलो. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और बाकी लोग का, निशु, प्रीति, No, sir. कहा जगह में समझ में नहीं आया बोलो. शिवम, शिवम, उज्जवल, तुम लोग का? सर समझ आ गया. अच्छा. और बाकी किसी का कोई क्वेश्चंस? No, sir. ठीक. तो सो फ्रॉम दैट व्हाट वी से, जो स्टॉप एंड वेट ARQ है, अभी दो ARQ हम लोग देखे हैं अभी तक. कौन सा दो टाइप का ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हम देखे. वो two types are what? Stop and wait and go back in ARQ. These two type of automatic repeat request we have seen. So from there we able to say then stop and wait. The ARQ which is used in the stop and wait ARQ. It is the special case. It is the special case of go back in ARQ. ये जो go back in ARQ है, same of that go back in ARQ जो है, same process है. Same process ही क्या है कि जो stop and wait ARQ है, वो go back in ARQ का एक special case है. Go back in ARQ का एक special case है stop and wait. जिसमें क्या है, stop and wait में हम लोग देखें, stop and wait में हम लोग का window size जो है, at a time one transmission is possible. So that means what? The window size is 1. So stop and wait is the special case of go back in ARQ, where size of the send window is what? Size of the send window is 1. But for go back in ARQ, the size of the send window is what? Means the size of the sender window, it is n. But in case of stop and wait, it is what? It is 1. The size of the send window is 1. So
we can say that stop and wait ARQ is a special case. It is the special case of go back in ARQ system. Okay. So this is the two types we have seen. In the next class, I will discuss about the selective repeat, automatic repeat request, selective repeat. The last part is the selective repeat. In the next class, I will discuss about it. Okay. So that's it from today. So scan the QR code. I will give some time to scan the QR code for your attendance. So all of you scan the QR code for giving the attendance. For giving the attendance, scan this QR code. Manisha, are you here? Yes, sir. हाँ, तुम कल जो ये किए थे तुम्हारा वो डाउनलोड हुआ था जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल सॉल्व रहे हो थे? गया। अच्छा ठीक हाँ, है। हो गया सब कुछ। उसका प्रॉब्लम अभी प्रोग्राम रन कर पा रहे हो तो उसमें अभी मतलब कि हम बन हाँ सर, बन रहा प्रोग्राम। ओके ठीक है। और बाकी लोग का गोल्डन तुम्हारा डाउनलोड हुआ था? सर लाइन नहीं था 2 दिन से, तो आज करेंगे सर। तो उसका डाउनलोड कर लेना जो यस ये है हम लोग का, जो हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर है, सभी यस मैक्सिमम लोग डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास यस से हम जब लैब कराएंगे, कल ही हम कराएंगे, तो उसमें क्या है तुमको ये लेके बैठना होगा, सिस्टम्स लेके बैठना होगा। ओके सर। So all of you have done the scanning of this QR code? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So then I am stopping the sharing. So thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.